Good morning, students. Beta, today I will discuss with you the mechanism of SN2 and SN1 reactions. Mechanism of SN2 and SN1 reaction. Now, firstly, I will take SN2 reaction. So, this SN2 reaction means, इसका मतलब क्या है? Y molecular, Y mean 2, Y molecular nucleophilic, Y molecular nucleophilic substitution reaction. इसका मतलब है Y molecular, Y mean 2, दिस इज 2, ये आपका 2 हो गया, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक हो गया और ये S हो गया सब्स्टिट्यूशन. Y molecular nucleophilic substitution reaction. So this mechanism for this is space. Suppose we take alkyl halide or X, we react it with aqueous sodium hydroxide, we get ROH plus NaX. Now in this case, beta, X is replaced by OH. Here X is replaced as a negative. Negative is a nucleophile, and in that place you get OH negative. So X nucleophile is replaced by the OH nucleophile. So it is a nucleophilic substitution reaction. Now let us take some example. It is methyl chloride. Now when it is reacted with aqueous sodium hydroxide, NaOH, you get HCH, then H, then in place of Cl you get OH plus NaCl. Now in this also, this Cl is replaced by OH. So Cl is replaced by nucleophilic substitution reaction. Now mechanism for this is like this. In the mechanism, we say sodium hydroxide, when dissolved in water, it produces Na positive and OH negative. This is a dissociation of sodium hydroxide. Now this is our CHCl. You know, this methyl chloride, ये जो कार्बन है, it is sp2 hybridized. जब ये sp2 hybridized है, it is tetrahedral. It has got tetrahedral structure. Now in this tetrahedral structure, this chloride is slightly negative and carbon is slightly positive. You know why? Because chlorine has got more electronegativity. Chlorine has got more electronegativity than the carbon. It attracts the paired shell electron towards itself. As a result, chloride Cl carry negative charge, C carry positive charge. Now OH negative, which is produced here in first action, that attacks on this C, partially C positive. OH नेगेटिव जो है partially C positive अटैक कर रहा है. क्यों? Because C is positive and OH is negative. Now it attack, this Cl is in this side and OH attack from the rear side. So OH cannot attack from this side, because if OH will attack from this side,
Cl negative is coming in its way, or Cl negative, OH negative and Cl negative, they will feel repulsion. So OH cannot come from here. So OH come from the rear side. So what is happened? Before the releasing of a Cl negative, OH is attacking on this carbon C positive, C partially positive. So what is happened? You get this A transit stage. This is Cl, this is OH negative approaching to this, and carbon is bonded with 3 hydrogen. It is like this. This is C. C is with the Cl attached with OH, Cl. This OH and Cl are in the opposite direction. Cl is a releasing group and OH is the entering group. Cl is the releasing nucleophile and OH is the entering nucleophile. Now in this case, at present, carbon is sp2 hybridized. You know, when carbon is sp2 hybridized, it is planar. This carbon, these 3 hydrogen, they are planar. OH is attacking on the carbon from the upper side, and Cl is leaving from its back side. OH जो है इसको अपर साइड से अटैक कर रहा है और जो Cl है उसकी बैक साइड से बाहर को निकल रहा है. बट एट दिस पोजीशन both are still present attached with the carbon. So इस स्टेज में दिस इज कॉल्ड एज ए ट्रांजिशन स्टेट. इस ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन है वो पेंटावेलेंट है. उसने 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें ये कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन जो है वो एक प्लेन में हैं. OH और Cl जो है वो दूसरे प्लेन में हैं एंड दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर. OH अगर अपर साइड है तो Cl लोअर साइड है. यू फॉलो बेटा. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? दिस इज अ वेरी स्लो स्टेप. ये स्लो स्टेप है. क्यों स्लो स्टेप है इस रिएक्शन का? क्योंकि OH एंटर कर रहा है, Cl रिलीज कर रहा है. दे आर कंपीटिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को कंपीट कर रहे हैं. OH एंटर करने की कोशिश कर रहा है और जो Cl है वो निकल रहा है. दे आर इन कंपटीशन टू ईच अदर. सो दिस इज ए स्लो स्टेप. वंस दिस ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, आफ्टर दैट स्टेप बिकम फास्ट. Now, what is happened? Cl is completely removed and OH is completely attached with the carbon, and you have got 3 hydrogen like this. This again sp3 hybridized, और ज्योमेट्री इसकी क्या है? टेट्राहेड्रल. देखो बेटा, ये स्टेप फास्ट है और ये स्टेप स्लो है. जहां पर बॉन्ड कार्बन और क्लोराइड के बीच में है, ये जो है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. ये भी sp3 और ये sp2 है. ये sp3 है, ये भी sp3 है और ये sp2 है. देखिए बेटा, इस वक्त क्लोराइड जो है टेट्राहेड्रल, आपको मालूम है टेट्राहेड्रल की शेप प्रैक्टिकली ऐसे होता है. क्लोराइड ये हाइड्रोजन है, दिस इज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप 1 2 3. टेट्राहेड्रल आपको मालूम है नॉन प्लेनर होता है, इसको एक प्लेन में हम प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ये Cl जो है ये इस साइड को है, OH इधर से एंटर कर रहा है और कॉन्फ़िगरेशन इस वक्त ऐसी है कि Cl ये समझ लो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला का ये हैंडल है और ये ऐसे अम्ब्रेला ऐसे बना हुआ है. और जब OH एंटर कर रहा है और ये प्लेनर हो जाता है
और OH और Cl अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। और जब जहाँ फास्ट स्टेप हो जाता है, ये समझ लो अब अम्ब्रेला का हैंडल अब इस साइड आ गया है और छाता इस साइड को हो गया है, इन्वर्शन हो गया है, उल्टा हो गया। जहाँ पर अम्ब्रेला ऐसे था, इधर था हैंडल, इधर था अम्ब्रेला, जहाँ पर OH इधर आ गया और हैंडल इधर आ गया और अम्ब्रेला इस साइड चला गया। जैसे हमने हवा में ये अम्ब्रेला को पकड़ा हो तो वो अम्ब्रेला जो है वो हवा से उल्टा हो जाता है। इस तरह ये जो पहले Cl इधर था अब OH इधर है, ये इन्वर्स हो गया। ये कॉन्फ़िगरेशन और ये जो कॉन्फ़िगरेशन, ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है और ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है एक दूसरे के उल्ट हैं। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हैं ये, इसलिए इसको बोलते हैं ये जो प्रोडक्ट बना है इट हैज फॉर्म्ड विद द इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो गई है, उल्टी हो गई है। ये हमें वाल्डन ने बताया था, WARDN, इसलिए हम WALDN, इसलिए आज हम इसको कहते हैं वाल्डन इन्वर्शन। ये वाल्डन इन्वर्शन है। पहले कॉन्फ़िगरेशन ऐसी थी, अब कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो गई है। हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी sp3 है। तो ये जो देयर इज ए कंप्लीट इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज कॉल्ड एज ए वाल्डन इन्वर्शन। ये आपकी वाल्डन इन्वर्शन बोलते हैं इसको, ये वाल्डन इन्वर्शन है, राइट बेटा। नाउ इन दिस केस दिस स्टेप इज ए स्लो स्टेप, दिस स्टेप इज ए फास्ट स्टेप। जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व इन ए रिएक्शन। इस वक्त दो रिएक्टेंट हैं, एक मिथाइल क्लोराइड है और दूसरा OH नेगेटिव है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसलिए जो रेट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। एक डिपेंड कर रहा है मिथाइल क्लोराइड पर, दूसरा डिपेंड कर रहा है OH नेगेटिव पर। ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। रेट स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है। जब हम इसका रेट निकालते हैं तो रेट इज डिपेंडिंग अपॉन टू स्पीसी, वन इज मिथाइल क्लोराइड एंड सेकंड इज OH। सो जब ये रेट दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ए SN2 रिएक्शन। इट इज कॉल्ड एज ए वाई मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। आप कहेंगे सर इसको क्यों लिया, ये फास्ट स्टेप है, हमारा रूल है हम रेट स्लो स्टेप से निकाल पाते हैं। तो ये स्लो स्टेप है, इस पर रेट डिपेंड करता है, तो रेट 2 डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज ए SN2 रिएक्शन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, तो ये इसको ध्यान से सुनो। दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये आपका अल्काइल क्लोराइड है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रेड कर रहे हैं तो X की जगह OH आ गया, ये आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और जब ये मिथाइल क्लोराइड है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर रहे हैं तो ये Cl की जगह आपका OH आ गया, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड की जगह मिथाइल अल्कोहल बन गया। नो इसका मैकेनिज्म डिस्कस यू कैन, हम इसको शॉर्ट में ये कहते हैं दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये हाइड्रोलिसिस हो रही है अल्काइल हैलाइड की। अब इसका मैकेनिज्म हम ऐसे डिस्कस करते हैं, दिस कार्बन दिस इज बॉन्डेड विद 3 हाइड्रोजन और ये Cl आपको मालूम है ये टेट्राइडल है। अब मैं कागज़ पे टेट्राइडल सही नहीं बता सकता, आपको 11th क्लास में इसका ज्योमेट्री स्ट्रक्चर बताया था, मॉडल बताया था। और ये C और Cl है और ये 3 हाइड्रोजन 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। OH जो है वो इस पर अटैक कर रहा है जबकि Cl इसमें कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ। नो आस्ते से OH एंटर कर रहा है और जो Cl है वो उससे आस्ते से निकल रहा है। इस वक्त कार्बन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और जब sp2 हो, आपको मालूम है जब sp2 हो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखें इसको, जैसे कार्बन द एक्साइटेड स्टेट ये 2s1 है और 2p3 है। S में 1 इलेक्ट्रॉन है और P में कितने हैं बेटा, ये P में
3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 है, 1 2 1 2 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, ये एक p बच गया, इस p, ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी इसकी, इसने ये 3 बॉन्ड बनाए हैं और ये प्लेनर है, एक प्लेन में, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जब sp2 होती है तो स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेनर, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, लेकिन एक p बचा हुआ है, जहां पर बेटा एक p बचा हुआ है, ये जो p है इस p ने इस साइमल्टेनियसली इस OH को भी होल्ड किया हुआ है, Cl को भी होल्ड किया है, इसकी वजह से ये पेंटावेलेंट है और ये टेम्पररी स्टेज है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, ये रेक्टेंट और पॉलीड के बीच में बनती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद स्टेप फास्ट हो गया और क्या होता है, OH एंटर कर जाता है और Cl कंप्लीटली बाहर निकल जाता है, प्लस हो जाता है। नो इस केस में क्या होता है कि OH जब एंटर कर गया और C जो है उसके साथ 3 H लगे हुए हैं, पहले कॉन्फ़िगरेशन ऐसे थी, क्लोराइड इधर था, OH इधर थे, अब कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो गई है, OH इधर है और हाइड्रोजन जो है OH इधर है और हाइड्रोजन जो है इस साइड है। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन इस साइड को थी, अब कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो गई है। इसकी वजह से हम इसको कहते हैं इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये जो प्रोडक्ट बना है, जब मिथाइल क्लोराइड से आप मिथाइल अल्कोहल में पहुंचे हैं, इट हैज टेकन प्लेस विद इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो गई है। सपोज ये कंपाउंड अगर डेक्स्ट्रो होता तो ये लीवो हो जाना था, हालांकि ये नहीं है, ये डेक्स्ट्रो लीवो की एग्जांपल नहीं हो सकती, क्योंकि डेक्स्ट्रो लीवो के लिए चारों ग्रुप डिफरेंट चाहिए। तो अगर ये लीवो होता तो ये डेक्स्ट्रो हो जाना था, अगर ये डेक्स्ट्रो होता तो क्या हो जाना था, लीवो। आगे जाके मैं बताऊंगा आपको डेक्स्ट्रो लीवो के बारे में। तो ये ट्रांजिट स्टेट होगी, जो रिएक्शन इस स्टेप पर डिपेंड कर रही है, रेट 2 पर डिपेंड कर रहा है, तो रेट 2 पर डिपेंड कर रहा है, इसकी वजह से रिएक्टेंट 2 है, तो ये 2 पर डिपेंड कर रहा है, तो रिएक्शन बायोमॉलिक्यूलर होगी, दैट इज कॉल्ड एज SN2। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन किया आज है। और इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस विद यू SN1। आज इतना ही बेटा। ये बेटा जब पढ़ रहे हो आपके पास नोट्स भी हैं, उधर से थ्योरेटिकली उधर से पढ़ो और मेरे इस वीडियो को देख के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ओके।